and I'm delighted today to welcome and introduce a man who needs little introduction, His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India. The Prime Minister, as you all know, and as you've seen in our media, has taken New York City by storm. Madison Square Garden has not seen such excitement since the Knicks last won a championship, which was so long ago that few who were witness are still with us today. Sorry, pardon for the parochial reference to our no longer successful basketball team. The Prime Minister may have come a long way to be with us, but he wasn't the only traveler from India who logged a lot of miles this week. India's Mars orbiter also arrived at its destination just days ago. And my congratulations to the Prime Minister and to all in his country who made this accomplishment possible. Prime Minister Modi is the 6th sitting Prime Minister of India that we here at the Council on Foreign Relations have been fortunate enough to host, and this reflects our long-standing commitment to the study of India, as well as its relations with its neighbors and with the United States. We are especially proud to host the Prime Minister during his first visit to the United States since assuming office following a truly historic election 127 days ago. His party won the first absolute majority in Parliament in 30 years. Voter turnout, and all Americans should pay heed to this, voter turnout was an astounding 550 million individuals. 66% of the electorate went to the polls. And the large mandate garnered from this turnout and outcome ignited a buzz of excitement in India and beyond, and has led to high expectations for change. Now, as many of you know, the Prime Minister ran on a platform that centered on good governance and economic growth and development in India, a message that reflected all he accomplished as Chief Minister in Gujarat. But the Prime Minister will also have more than a little opportunity to focus on India's external relations, including those with this country. As is often remarked upon, India and the United States are the world's 2 largest democracies. The bilateral relationship is potentially one of the most important for the United States. That said, I use the word potentially consciously because we are not yet there. Our relationship is underdeveloped in terms of trade and investment, energy security, and strategic cooperation on both regional issues, including South and East Asia, as well as transnational issues, including terrorism and climate change. And the challenge and the opportunity for both countries, for both the United States and India, is to translate all this potential into reality. I look forward to speaking with the Prime Minister on his plans for India, especially on his plans for its economy, and on the foreign policy and national security challenges he and his countries face. First, however, the Prime Minister will deliver some remarks, and he'll do so in Hindi. For those of you who are not yet fluent in Hindi, there are headphones. Afterwards, Prime Minister and I will sit down in conversation for a few minutes before we open it up to our members for additional questions. And I want to let everyone know that this meeting is on the record. So with that, again, I want to welcome Prime Minister Modi to the Council on Foreign Relations and invite him up here to this podium to deliver his remarks. Sir. Thank you. Thank you. डॉक्टर रिचर्ड हर्ष और गणमान्य सभी अतिथिगण, भारत के 5 प्रधानमंत्री इसके पूर्व इस सभागृह में आप सबके साथ बात कर चुके हैं। मेरा 6ठा नंबर है। मैं 3 दिन से आपके इस शहर में हूं और मुझे जो उत्साह, उमंग और प्यार मिला है
इसके लिए मैं इस शहर का, यूएस का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से सीएफआर के इस परंपरा को बधाई देता हूं कि उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। वे स्वयं अपने विचारों को थोपते नहीं हैं, वे विचारों को सुनते हैं, सब पक्षों के विचारों को सुनते हैं और उसी को जगत के सामने रखते हैं और लोगों पर छोड़ देते हैं कि ये भिन्न भिन्न पहलू हैं, आप जज कीजिए सही क्या है, गलत क्या है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में छोटा काम नहीं है, वरना संस्थागत प्रेम इतना होता है, संस्था की अपनी छवि की चिंता इतनी होती है, वो अपने विचारों को कहीं न कहीं तो रंग देने की कोशिश करता है। लेकिन सीएफआर ने अपने आप को लगातार बचाए रखा है और जैसे के तैसा और सब पहलुओं को ला करके एक समेट करके सबके सामने प्रस्तुत करने की एक परंपरा खड़ी की है। इसके लिए मैं सीएफआर को हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हास का संबंध हिंदुस्तान से अच्छा रहा। भारत और अमेरिका के संबंधों को पिछले दशक में गति देने में, संबंधों को और ताकत देने में डॉक्टर हर्ष ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी भारत में, तब उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही थी और हम पूरा भारत उनके इस योगदान को सकारात्मक रूप से हमेशा याद करता है और मैं डॉक्टर हास का उसके लिए हृदय से आज भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा अभी डॉक्टर हास ने बताया कि 30 साल के बाद भारत में पहली बार एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके आई है और वो भी जो हमेशा विपक्ष में रहती थी वैसी पार्टी जीत करके आई है। और पहली बार भारत में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। हमारे यहां अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए वो जब ब्रिटिश शासन था उसी काल में उनका जन्म हुआ था और इसलिए मैं वो इंसान हूं जिसे गुलामी के उन दिन देखने का अवसर नहीं आया था। मैंने लोकतंत्र की ब्रीदिंग के साथ किया है। मेरे सांसों सांस में लोकतंत्र है और वही लोकतंत्र की ताकत के भरोसे आज समाज का एक सबसे छोटा व्यक्ति हिंदुस्तान के इस पद पर पहुंच पाया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। पहली बार बहुमत मिला है और उसके कारण करीब करीब 2 जनरेशन जो अपनी आशा आकांक्षाओं को समेट करके बैठे थे, एकदम से उफान आया है। भारत का हर नौजवान जिसकी आयु आज 40-45 साल हुई होगी, 10 साल की उम्र से अपनी 40 साल की यात्रा तक उसने अस्थिरता, निराशा, यही माहौल देखा है। और जब ये स्थिति आई है तो स्वाभाविक है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना हमारा दायित्व भी है। भारत एक विशाल देश है, उसके चुनाव को समझना ये भी बहुत बड़ा कठिन काम है
और जैसे पश्चिम के देशों में चुनावों पर किताबें लिखी जाती हैं, भारत में उस प्रकार की परंपरा अभी तक तो नहीं बनी है और उसके कारण चुनाव का रूप, रंग, उसका दायरा, इसका पूरा अंदाज जब तक कि कोई व्यक्ति वहां चुनाव को निकट से न देखे उसको अंदाज नहीं आ सकता। और शायद विश्व में इतनी बड़ी संख्या में मतदान, इतने मतदाताओं के मत प्राप्त करके विजयी होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या रहती है, कठोर परिश्रम रहता है। लेकिन भारत की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। इस चुनाव में हम दो विषयों को लेकर के मैदान में उतरे थे। एक हमारा आग्रह था गुड गवर्नेंस, दूसरा हमारा आग्रह था डेवलपमेंट। हम मानते हैं कि भारत की सारी समस्याओं का समाधान जब तक हम इन बातों पर फोकस नहीं कर सकते तब तक हम नहीं कर पाते। पहले हमारे यहां कुल मिलाकर के आदत ये रही थी कि छोटे छोटे वर्गों को खुश करो, टुकड़े फेंको, अपनी वोट बैंक को सलामत रखो और राजनीति करते रहो। वो एक सरल उपाय है, बहुत ही सरल रास्ता है और राजनीति में टिकने के लिए बड़ा हिंदुस्तान के लोगों को बराबर वो जम गया था। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, छोटे विषयों से ऊपर उठ के बात करना, ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इस बात को लोगों ने इसलिए स्वीकारा क्योंकि भारत की जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच बदली है। भारत की जो यंग जनरेशन है वो उन टुकड़ों में अब जीना नहीं चाहती है। अब तक जिस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट मिली है उस ट्रीटमेंट से वो खुश नहीं है, वो कुछ नया चाहती है। और भारत एक भाग्यवान देश है, वो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, साथ साथ दुनिया का सबसे युवा देश है। ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि महान विरासत भी है और हम यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। इस यूथ का जो एस्पिरेशंस है, ये यूथ के मन के अंदर जो पड़े हुए विचार है, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया है। ये बात निश्चित है कि राजनीति में स्टेबिलिटी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। हम जानते हैं कि अगर स्टेबिलिटी है तो सामान्य मानवी को भरोसा होता है कि हाँ भाई चलिए अब कुछ नीतियों के आधार पर चलेगा, हम साथ चल सकते हैं। तो भारत की जनता ने स्टेबिलिटी का निर्णय कर करके विकास की यात्रा की नींव डालने का काम स्वयं जनता जनार्दन ने किया है। मैं इस बात में विश्वास करता रहा हूं, जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूं तब मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए इतने बड़े परंपराएं, इतने बड़े नियम, इतनी बड़ी हायरार्कीज, यही चीजें हैं जो रुकावट का कारण बन जाती है। वो सरकारी व्यवस्था ही एक प्रकार से बोझ बन जाती है। मेरी कोशिश है सारी प्रोसेस सरल कैसे हो, स्पीडी कैसे हो, उस दिशा में हमारी कोशिश है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, ये हमारी कोशिश है। हम ई गवर्नेंस की ओर बल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसके कारण इफेक्टिव गवर्नेंस की पूरी संभावना है, इजी गवर्नेंस की संभावना है, उस पर हमारा बल है। और दूसरी बात है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी हमारे दो फलक है। एक, हम विश्व स्तर पर डेवलप कंट्रीज की बराबरी में
हमारे देश को ला करके कैसे खड़ा करें। एट द सेम टाइम मेरे देश का जो गरीब से गरीब इंसान है, जो आखिरी इंसान है, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाए। भारत की जब चर्चा होती है तो एक पहलू छूट जाता है। अब समय की मांग है कि उस पहलू पर चर्चा हो, और वो है नियो मिडिल क्लास। जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं लेकिन अभी मध्यम वर्ग की अवस्था तक पहुंचे नहीं हैं और अब गरीबी में वापस जाना नहीं चाहते हैं, ये ऐसा एक बहुत बड़ा बल्क है। हम इस नियो मिडिल क्लास को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर हम नियो मिडिल क्लास को एड्रेस करते हैं, उसकी आर्थिक जीवन में बदलाव लाते हैं, तो गरीबी से बाहर निकलने का हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर हमने नियो मिडिल क्लास के प्रति उदासी बरती और दुर्भाग्य से वो फिर गरीबी की ओर चला गया, तो कभी भी गरीब को बाहर रहने की आने की इच्छा नहीं होगी। वो यही मानेगा परमात्मा ने तय किया है और ऐसे ही गुजारा कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं ये मनोवैज्ञानिक स्थिति को बदलना चाहता हूं और उसके लिए इस तबके के विकास के लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, उस पर हम बल दे रहे हैं। जो मैं कहता हूं हम ग्लोबल लेवल पर जाना चाहते हैं, जिसमें हम हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को हम और तेज बनाना चाहते हैं। अच्छा है पहले 3 महीने में ही हम 4.5 से 5.7 तक हमारे ग्रोथ को 1% पहले 3 महीने में बढ़ाने में सफल हुए हैं। और उसका एक मूल कारण है सरकार चुनने के बाद एक विश्वास का माहौल बना है, और उस विश्वास का माहौल है वो सबसे ज्यादा गति देता है। कभी कभी कोई पेशेंट बीमार हो और किसी दूसरे शहर में बीमार हो गया हो, जब तक उसको अपना डॉक्टर नहीं मिलता है वो ठीक नहीं होता है, उसको चिंता रहती है, उसको खुद का डॉक्टर चाहिए। तब उसका अपना विश्वास उसको बीमारी से बाहर लाता है। और इसलिए लोगों ने जिस विश्वास के साथ अपनी सरकार बनाई है, उस सरकार खुद ने बनाई है, अपनी अच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाई है, उसके कारण जनता के अंदर अपने आप में एक विश्वास पैदा हुआ है। और विश्वास बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल काम इन दिनों कर रहा है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट आज मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ से विकास की तरफ की दौड़ का एक माहौल बना है, और जो हमें विश्व के समृद्ध देशों की बराबरी में ले जाने के लिए संभावनाओं को जन्म देता है। हम हमारी इकोनॉमी को 3 पिलर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। और तीनों को हम बैलेंस करना चाहते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हो, 30% मैन्युफैक्चरिंग का हो, 30% सर्विस सेक्टर का हो। कभी कभार अगर एक आध भी नीचे चला गया तो भी देश की इकोनॉमी को कोई तकलीफ न हो, और उस दिशा में हम आगे चल रहे हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तब हम मेक इन इंडिया का एक बुलंद विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को कहते हैं कि आइए मेक इन इंडिया। और मैं इंडिया के लोगों को कहता हूं कि आप भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में चले। और उसके लिए मैं कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जो जीरो डिफेक्ट हो, हमारी प्रोडक्ट की प्रोसेस ऐसी हो कि जो एनवायरमेंट पर जीरो इफेक्ट करती हो। और इसलिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, उन पर हम अपना बल दें, तो हम दुनिया के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए सफल हो जाएंगे। जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं कि तो दुनिया के लोग आए, आज दुनिया के हर उद्योगकार को उत्पादन तो करना है, मार्केट अवेलेबल है, उसकी चिंता यही है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे हो, इफेक्टिव गवर्नेंस की सुविधा कैसे मिली, अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कैसे हो,
उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स कैसे मिले, अपने मुलाजिम के लिए, अपने अफसरों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे उपलब्ध हो। अगर इन बातों पर ध्यान दिया गया तो विदेश के लोगों को आकर के संभावनाएं बढ़ गया। और भारत जहां युवा देश है तो हम स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे दो पहलू हैं। एक, 2020 तक दुनिया को बहुत बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता लगने वाली है। विश्व को इतने बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता लगने वाली है कि वो वर्कफोर्स कहां से मिलेगा उसका चिंता का विषय है। भारत युवा देश है, दुनिया की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरे करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान में है। दुनिया को कितने ही प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी, उस काम को हम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हम वो भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर तैयार हो और वो लोग हो जो जॉब क्रिएटर्स हो। छोटे लोग छोटे छोटे व्यवसायों के द्वारा जॉब क्रिएटर कैसे बने और उसके कारण छोटे छोटे उद्योगों का एक जाल बिछे और हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जिन कदमों को हमने उठाया है उसका सीधा सीधा परिणाम मिलने वाला है। पिछले 3 महीने के अल्पकाल में ही